کون سا جذبہ تھا؟ آخر ان میں کون سی طاقت تھی کہ وہ 313 ہونے کے باوجود ڈٹ گئے کافروں کے مقابلے میں؟ یہ تو پتا وہ کون سی طاقت تھی، کون سا جذبہ تھا؟ تو آپ کہیں گے کہ ارے وہ جماعت تھی۔ کون سی جماعت تھی؟ بولے نماز پڑھنے والوں کی جماعت تھی۔ آپ کہیں گے وہ روزے رکھنے والوں کی جماعت تھی۔ آپ کہیں گے وہ کلمہ پڑھنے والوں کی جماعت تھی۔ آپ کہیں گے وہ مسجدوں میں اذان دینے والوں کی ذات تھی۔ آپ کہیں گے کہ وہ تو حج کرنے والوں کی ذات تھی۔ ارے وہ قوم مسلم کی ذات تھی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان ببركة بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا معزز سامعین کرام، شمع رسالت کے پروانوں، بعدائے توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فیدہ کاروں، غوث اعظم کے دیوانوں، خواجہ پاک کو چاہنے والوں، اولیاء کرام کو ماننے والوں، میرے ملت کے نوجوانوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، آؤ سب سے پہلے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، جن کی نگاہیں اڑ جاتی ہے تو مادی طاقتوں کو پسینہ آنے لگتا ہے۔ آؤ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں جو قرۂ ارض پر کھڑے ہو کر انگلیوں کا اشارہ فرما دیتے ہی ڈوبا ہوا سورج منزل سے پلٹ آتا ہے۔ آؤ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں جن کو رب کائنات نے کہیں مدثر کہہ کے پکارا، کہیں مزمل کہہ کے پکارا، کہیں البصیر النذیر کہہ کے پکارا، تو کہیں سراج منیر کہہ کے پکارا، تو کہیں یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا۔ آؤ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم لکم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا وہ تیری گلی سے جائے گی۔ معزز سامعین کرام، اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بریلی کے دھرتی سے پکار اٹھتے ہیں۔ ترجمانی کی شان توجہ چاہوں گا حضرات، وہ اشعار انہی کی بو
महक रहे हैं, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है, के नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है, कि महर कब से निकाब में है। उनकी खुशबू ऐसी होती है जो कभी खत्म होने का नाम नहीं। ये जितने भी देख रहे हैं रवाना के, ये दरिया की तुग़यानी, ये ज़ुल्मत कदा, ये आसमान और ज़मीन, ये चाँद और सूरज, जो भी आप लहलहाते हुए देख रहे हैं वो आमिना के लाल के सदक़े हैं। इसी को तर्जमानी करते हैं, फरमाते हैं कि जली जली बो से उसकी पैदा है नवाज़िशे इश्क़ चश्मे वाला, कबाब आहों में भी न पाया, कबाब आहों में भी न पाया, मज़ा जो दिल के कबाब में है, मज़ा जो दिल के कबाब में है। हर आशिक चाहता है कि कब्र अनवर पर हमारे आका जब तशरीफ लाए तो आला हजरत फरमाते हैं कि मेरी कब्र को जरा गहरी बनाना, ताकि मैं खड़े होके या नबी सलाम अलैका पढ़ सकूं। कह दो मचल के सुभान अल्लाह। ताकि नबी को अगर सलाम ही करना है तो खड़े होकर करो, अदब के साथ करो, बेअदबी से ना करो। तो मौजूद सामईन इकराम, इसीलिए हर आशिक की ये ख्वाहिश होती है कि जब मुश्किल घड़ी आए, जब कोई परेशानी आए तो या रसूल अल्लाह का नारा लगा दो, या रसूल अल्लाह पुकारो, या रसूल अल्लाह, तो सारा मुश्किल का बेड़ा गर्क हो जाएगा और तुम्हें कोई परेशानी, कोई मुसीबत तुम्हें ठग न आएगी। तो सबसे बड़ी परेशानी, मुसीबत, जो सोचने वाली बात, जो टेंशन वाली बात है, वो कब्र के अंदर है नहीं है? वो इमिग्रेशन सेंटर है, वहां पर तुम्हारी आइडेंटिटी देखी जाएगी। ये नहीं कहा जाएगा कि तुम हाजी हो, तुम नमाजी हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो, ईमानदार हो। ये नहीं कहा जाएगा हनाफी हो, वहाबी हो, लामज़हबी हो, गैर मुक़ल्लिद हो, कोई धनीराम हो, कोई गरीब हो, राजा हो, महाराजा हो, प्रजा हो, कुछ नहीं कहा जाएगा। कहा जाएगा मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, माँ कुंता तकुल फी हाज़ल रजुल, ये शख्स जो तेरे सामने खड़ा है, इसे तू दुनिया में क्या कहा करता था। ये है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से मतलब पता है ना, आधार कार्ड जिसे कहते हैं। आप अगर इंडिया में है, कहीं भी जाओ, आधार कार्ड आपको दिखाना ही पड़ेगा। भाई ये है मेरा आधार कार्ड। अगर बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जाओ तो आधार कार्ड चाहिए, राशन कार्ड बनाने जाओ तो आधार कार्ड चाहिए। कुछ भी करो, आज भारत के जो सरकार है वो ऐन लागू कर दिया है कि आधार कार्ड जरूरी है। तो कब्र अनवर पर तुम्हारी आइडेंटिटी देखी जाएगी, तुम्हारा ईमान, तुम्हारे नमाज, तुम्हारे रोजे, तुम्हारा हज, तुम्हारा ज़कात, जितने भी अरकान है वहां कुछ नहीं देखा जाएगा। तुम्हें पूछा जाएगा मन रब्बुका, माँ दीनुका, माँ कुंता तकुल फी हाज़ल रजुल। अगर तुमने बता दिया, अल्लाह ने फरमाया नौम का नौमुल उलूज, ऐ मेरे फरिश्ते, इनको ऐसे सुला दो जैसे दूल्हा दुल्हन सो जाता है। इनको ऐसे सुला दो ताकि ये एकदम कब्र पे ऐसे सो जाए, ताकि उठे वो
محشر کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب وہ نیند سے اٹھے گا وہی بندہ جو سوالوں کا جواب دے دے گا، وہ بندہ جب اٹھے گا قیامت کا دن ہوگا، محشر برپا ہوگا، تو اس وقت وہ بندہ آنکھیں مچل مچل کے کہے گا کہ اچھا بتاؤ اتنی اچھی نیند آ رہی تھی مجھے کس نے اٹھایا؟ اسی طرح سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اللہ فرمائے گا ما ھذا وعد الرحمن، وہ شخص کہے گا مجھے کس نے اٹھایا، میری تو نیند ابھی کچی تھی، ابھی تو میں اور سوتا۔ اللہ آواز دے گا اے میرے بندے اٹھ جا، یہ تو وہ تیرے رحمان کا وعدہ ہے جو دنیا میں تیرا اللہ تیرا مالک تیرا خالق تجھ سے وعدہ کیا تھا، اور مرسلین یعنی نبیوں نے جو کہا تھا وہ محشر کا دن آج برپا ہے۔ تو پریشانی کہاں ہوئی؟ سب سے، اور اگر وہاں سوالوں کا جواب نہیں دے پائے، آدھار کارڈ یعنی آئیڈینٹی نہیں بتا پائے، تو بولے گا اب اس پر عذاب لاگو کرو، قبر میں ہی عذاب لاگو کرو، جہنم تو بعد کی بات ہے، وہ تو محشر کے بعد جہنم میں مقرر کیا جائے گا، لیکن ابھی سے ٹیلر شروع کر دو۔ تو معزز سامعین اکرام، اسی لیے ہر عاشق کی فریاد ہے کھڑے ہیں منکر نکیرو سر پہ نہ کوئی حامی نہ کوئی آور، منکر نکیر کھڑے ہیں سر پہ، نماز روزہ حج زکات کوئی بھی یار نہیں، کوئی بھی مددگار نہیں، اس قبر میں کوئی بھی مددگار نہیں، ساری رات میں نے نمازیں پڑھی، اپنے پیشانی میں لاکھوں بار سجدے کر کے پیشانی میں کالے نشان بنا لیے، لیکن یہاں پر کوئی حامی ہی نہیں، کوئی مددگار ہی نہیں، منکر نکیر سر پہ کھڑا ہے۔ سوال جواب کرنے کے لیے، اب آسان کرنے کے لیے عاشق کی خواہش دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، کھڑے ہیں منکر نکیرو سر پہ نہ کوئی حامی نہ کوئی آور، بتا دو آ کر میرے پیغمبر، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ آج جو دنیا کا ماحول ہے، آج دیکھا جا رہا ہے مسجد میں نمازی تو ہے لیکن نمازیوں کے اندر سود خور ہے، نمازیوں کے اندر شرابی بھی ہے، نمازیوں کے اندر جواری بھی ہے، نمازیوں کے اندر حلال حرام میں تمیز نہ آنے والی ہے، نمازیوں کے اندر ہی بہت بڑی شریعت کی کمی ہے دوستو۔ اسی لیے اللہ سے یہ فریاد کیا جا رہا ہے اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، آج ہمیں اس دنیا میں بچا لے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لے، آج ہماری لاج رکھ لے، تاکہ اس دنیا میں جو ہم کریں کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہمیں مشکل میں نہ ڈال، ہمیں بے عزت نہ کر، ہمیں جلالت پہ نہ ڈال۔ اسی لیے آج ہی جو مانگنا ہے مانگ لو، آج ہی جو کرنا ہے کر لو، آج ہی توبہ کرنا ہے تو کر لو، ایمان کی طاقت اپنے اندر ڈالو، کیونکہ اللہ نے فرمایا، میں نے جو خطبات مسنونہ کے بعد جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، مہان رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے لوگو گھبراؤ نہیں، غم زدہ مت ہو، تم غم زدہ مت ہو، گھبراؤ نہیں، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی جیتو گے، تم ہی ہر جگہ تم جیتو گے، اگر ایک شرط پر، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ آج یہ آیت دھاس بتا رہی ہے کہ آج اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں فرما رہا ہے، یہ وعدہ کر رہا ہے، یہ پتا ہے مومنو، اے میرے مسلمان بھائیو، آپ لوگوں بظاہر یہ پتا ہے کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی
نہیں کرتا. اللہ پکا جھوٹ سے پاک ہے, اللہ پکا سچا وعدہ والا ہے. تو اللہ نے جو وعدہ کیا, اے میرے بندو میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ تم غالب رہو گے, تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا, تم پر کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا. تمہاری طاقت, تمہاری قوت, تمہاری بخش مددگار میں خدا, میں اللہ, میں تمہاری مدد کروں گا. اللہ نے فرمایا لیکن ایک شرط پر, تم اس وقت تک اس وقت غالب رہو گے جب تم مومن بنو تو. اب ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں, آپ مومن ہیں, وہ مومن ہے, ہر کوئی مومن ہے, لیکن مومن کی شان کیا ہے پتا ہے؟ مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اڑ جاتے تھے جنگ میں, میدان سے اکھڑ, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. جب وہ جنگ کے میدان میں قدم رکھ دیتے تو وہ شیروں کے میدان بھی پاؤں سے اکھڑ جاتے تھے. میرے دوستو, مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے, جس کے آنکھوں سے, جس کے کانوں سے, جس کے پاؤں سے کوئی اس کا مومن بھائی کہ وہ اذیت نہ دے, وہی مومن ہے. لیکن آج ذرا ذرا سی باتوں پر میں تو کرنا شروع کر دے رہے ہیں. اس میں ہم مومن کہاں سے ہوئے؟ اگر مسجد میں امام سے کوئی مقتدی کی بات ہو گئی تو میں تو ہو گئی. اگر بھائی بھائی میں کوئی جگہ جمی کی بات آئی تو میں تو ہو گئی. باپ بیٹے کے اندر تو میں ہو گئے. معزز سامعین کرام, مومن کی شان تو وہ ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. اسی لیے کیا شاعر نے خوب کہا, باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم. جب یہ وعدہ, کوئی مومن جب یہ وعدہ سن لیا کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اللہ نے جب وعدہ کیا تو مومن کی شان, مومن کی زبان سے نکل آتا ہے کہ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم. ارے 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا دی آزانے, کبھی پورب کی کلسیوں میں, کبھی تپتے ہوئے صحراؤں میں, دشت و دشت ہے, ارے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑ دیے گھوڑے ہم نے. یہ ہوتی ہے مومن کی شان. اور آج دیکھا جا رہا ہے, آج یہ قوم مسلم نہ جانے کتنی بربریت سے گزرنا پڑ رہا ہے, نہ جانے کن ظالموں کے آگے بھیڑنا پڑ رہا ہے. یہ قوم مسلم ایسے دلدل میں پھنس گئی ہے. آج یہ قوم مسلم کی دکانیں لوٹی جا رہی ہے, مکانیں لوٹی جا رہی ہے, دباؤ برباد کیا جا رہا ہے. ارے کہاں گئے وہ ایمان کی طاقت, کہاں گئے وہ مضبوط مددگار, کہاں گیا تیرے رب کا وعدہ بتا. اے قوم مسلم, میں تم سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. آج 1400 سال پہلے آقا مکے کے اندر جہاں ظلمت گدا تھی, چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا, جہاں ایمان کی کوئی نور نہیں تھی, ایمان کی کوئی روشنی نہیں تھی, ایسی جگہ پر جب اللہ نے اپنے حبیب کو, اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمایا, جب میرے پیغمبر وہاں مکے میں تشریف لائے تو وہاں پر میرے پیغمبر نے کہا قُلُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا. اے دنیا والو, اے مکے والو, اے قریش, اے کافرو, اگر بھلا چاہتے ہو, اگر خیر چاہتے ہو, اگر اچھائی چاہتے ہو تو پڑھو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب بتاؤ, یہ کلمہ دنیا میں تو بہت سے دھرم ہے, بہت سے دین ہے, لیکن اتنے کم سمے میں یعنی قلیل مدتوں میں یہ دین اسلام پھیلا کیسے, ہم تک کیسے پہنچا. آج پوری دنیا کے کونے کونے میں آج یہ اسلام پہنچ چکا ہے. آخر کس وجہ سے, کیسے؟ آپ کہیں گے کہ اسلام یہ جو پھیلا ہے, حضرت جو ممبر پر اذان دینے والے ہیں ان کے ذریعے سے, مسجد میں نماز پڑھنے والے ہیں, یہ لوگ جو صحابہ اکرام تھے, ابھی میں نے بتایا کہ 100 بار کر چکا ہے امتحان ہمارا, دی اذانیں کبھی پورب کی کلسیاں میں, کبھی تپتے ہوئے صحراؤں میں, دشت و دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آج ایک ایمان والا بتا دو جو کوئی دریا
पैदल पार कर दे, वो तो घोड़े पे पार हो गए, सवार हो गए। मौलाना सामीन इकराम, याद करो वो तारीख, जब तुम अपने इस्लाम की तारीख के औराक को उलट कर देखोगे, तुम्हारे आंखों से गफलत के पर्दे हट जाएंगे। तुम्हारी ये आंखें मुशाहिदा कर लेगी कि ये तख्त और ताज तुम्हारे लिए है, किसी गैर मुस्लिमों के लिए नहीं। ये हुक्मरान तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। आज देखा जा रहा है ये कौम मुस्लिम कहीं हाथ बांधे खड़ा हुआ है, कहीं गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ है, कहीं जालिम के सिपाहों के सामने ये झुका हुआ है। आखिर आए कौम मुस्लिम, ये तो बताओ, क्या तुम्हें वो इतिहास याद नहीं है? क्या तुम्हें वो तारीख याद नहीं है कि जब जंगे बदर में 313 मुजाहिदीन ने हजारों से जायद के मुकाबले में सब हरा हो गए। जंग का ये मुशाहिदा करने के बावजूद भी कि एक तरफ शेर और शिकम से आसूदा थे, खाते पीते झरके थे, हथियारों से, लश्करों से, ऊंटा सवारियों से भरपूर मौज मस्तियों में थे, और दूसरी तरफ नंगे भूखे थे। हाथों में कोई तलवार नहीं, पैरों में कोई जूते नहीं। वो तपते हुए रेगिस्तान में बालू के ऊपर जो धूप पड़ती है, अगर धूप तेज पड़े और कोई रेत हो यानी बालू हो, उस बालू के ऊपर आप खाली पैर नहीं चल सकते, आपका पैरों में छाला पड़ने का डर है। लेकिन वो याद करो तारीख, जब जंगे बदर हुआ, मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थे, और मुशरिक और कुफार की तादाद हजारों से जायद थे। उनके पास हजारों तलवारें थी, हजारों घोड़े थे, हजारों ऊंट थी। वो शेर और शिकम से पेट भरे हुए पूरे जोश और ताकत के साथ थे। लेकिन इधर सहाबाए किराम का वो 313 मुजाहिदीन बल लश्कर, जिनके पास पेट के आंख से आंख मिली हुई, कोई 2 दिन से नहीं खाना खाया हुआ होगा, कोई किसी ने 3 दिन से खाना खाया नहीं होगा, किसी के हाथ में कोई लकड़ी है तो किसी के हाथ में घर का कोई कूड़ा है। ऐसी तरह आ गए। तलवार तो 5 या 7 तलवारें थी, लेकिन अब वो डरे नहीं, वो सफारा हो गए, वो जंग में डट गए। और डटने के बाद ये बात पता चली कि वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। उन्हें घबराया नहीं, वो गमज़दा ना हुए, क्योंकि उसको पता था अल्लाह ने वादा किया कि वो हमें गालिब रखेगा, और गालिब ही रखा। आखिरकार रिजल्ट ये हुआ कि वो 313 मुजाहिदीन ने बल लश्कर जीत चुके। अब बताइए इनके पास कौन सी ऐसी ताकत थी, कौन इसका पुष्ट मददगार थे, कौन पीछे से इनको मदद फरमा रहा था। इसी तरह जंगे बहद में 60 मुसलमानों ने हजारों से जायद के मुकाबले में डट गए थे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि कौम मुस्लिम, ये तो बताओ आखिर उनमें कौन सा जज्बा था, आखिर उनमें कौन सी ताकत थी कि वो 313 होने के बावजूद डट गए काफिरों के मुकाबले में। ये तो बताओ वो कौन सी ताकत थी, कौन सा जज्बा था। तो आप कहेंगे कि अरे वो जमात थी। कौन सी जमात थी? बोले नमाज पढ़ने वालों की जमात थी। आप कहेंगे वो रोजे रखने वालों की जमात थी। आप कहेंगे वो कलमा पढ़ने वालों की जमात थी। आप कहेंगे वो मस्जिदों में अजान देने वालों की जात थी। आप कहेंगे कि वो तो हज करने वालों की जात थी। अरे वो कौम मुस्लिम की जात थी। तो मैं ये कहूंगा कि सुनो, आप भी तो नमाज पढ़ने वालों में से हो, आप भी तो मस्जिद के मीनार पे अजान देने वाले में से हो, आप भी तो रोजा रखने वालों में से हो, आप भी तो ज़कात देने वाले में से हो, आप भी तो हज करने वाले में से हो। फिर आपके वो ईमानी जज्बा कहाँ है? आपकी वो ईमानी ताकत कहाँ है? फिर आप गैर मुक़ल्लिद के सामने, आप बेदीनों के सामने, कहीं थाने में तो कहीं कोर्ट में तो कहीं कहीं आप सर को झुकाए क्यों खड़े हो? क्या तुम्हारे पास आईन नहीं है? क्या तुम्हारे पास कानून नहीं है? अरे अर्श अजीम से 1400 साल पहले अल्लाह के पैगंबर ने हमारे लिए जो कानून, हमारे लिए जो आईन, हमारे लिए जो फर्ज आईन किताब, वो अल्लाह का कलाम कुरानुल मजीद वल फुरकानुल हमीद लेकर आए। वही तो हमारा कानून है, उसी में तो हमारे सारे मसला का हल
है, लेकिन हम फिर कुरान को छोड़कर हम किसी काफिरों के महल में जाते हैं, अपनी इंसाफ ढूंढने के लिए बेदीनों के महल में जाते हैं, हम अपनी इंसाफ को ढूंढने के लिए किसी गैर मुस्लिम के सामने झुकते हैं। सच बात है, ये गलत बात है, ये सही बात है ना? आज हम कुरान को छोड़कर, जिसमें हमारा पूरा कानून मौजूद है, इंसाफ मौजूद है, मीज़ान है, अल्लाह ने मीज़ान कायम करेगा हश्र के मैदान में, लेकिन दुनिया के लिए मीज़ान ये कुरानुल मजीद है, जो हराम को एक तरफ, हलाल को एक तरफ, कहीं इसको कुरान कहा जा रहा है, कहीं इसको फुरकान कहा जा रहा है। कुरान से मतलब है अपने भाई भाई को इकट्ठा करना, फुरकान का मतलब है तुम हराम को निकाल कर फेंक दो और हलाल जो अल्लाह ने फरमाया उसको इकट्ठा कर। मौजूद सामईन किराम, तो मैं ये कहूंगा कि नहीं, अरे वो नमाज पढ़ने वालों की जात थी, वो रोजे रखने वालों की जात थी, हाँ हाँ हाँ, वो कलमा पढ़ने वालों की जात थी, अरे हाँ, वो कौमे मुस्लिम की जात थी, हाँ, लेकिन सुनो, वो कौमे मुस्लिम के साथ साथ नबी का गुलामी का पट्टा गले में डालने वालों की जात। आज तुम्हारे गले में नबी का गुलामी का पट्टा नहीं है, तभी तुम्हारा सर जहां तहां झुक जाता है। आज अगर गुलामी का पट्टा तेरे गले में होता तो आज भी वही होता, वला ताइनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलमना इन कुंतुम मुमिनीन। और सामईन किराम, इसी तरह आज मैं ये मौजू इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि आज देश भर में देख रहे हैं आपको पता ही होगा कि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस मुसीबत से हम गुजर रहे हैं, आज कौमे मुस्लिम बर्बादियत पर है। आज कौमे मुस्लिम को एक तरफ से तबाह बर्बाद किया जा रहा है। आप क्या समझ रहे हैं? आपके दामन के अगर इस कोने में आग लगे तो क्या वो आग आपके गिरेबान में नहीं आएगा? आज एक कोने में आज तबाह बर्बाद किया जा रहा है इस कौमे मुस्लिम को, और आज हम लगे हैं सूद के तरफ टहलने, आज हम लगे हैं जुएबाजी में, आज हम लगे हैं नशेबाजी में। आज ये कौमे मुस्लिम का ये हाल है तो क्यों ना ये कौमे मुस्लिम तबाह बर्बाद होगा। अगर नबी का गुलामी का पट्टा तुम्हारे गले में होता तो यकीनन तुम किसी के आगे सर ना झुकाते, ना तुम अपने रोजी रोटी के लिए जुआ खेलते, ना तुम अपने नफ्सानी को, अपने नफ्स को जगाने के लिए शराब पीते, ना अपने नफ्स को अय्याश करने के लिए ना तुम जुआ खेलते, ना तुम सूद खाते, ना तुम एक दूसरे की बुराई बयान करते, बल्कि तुम्हारे जुबान से हमा वक्त तुम्हारी इस्लाम की बातें निकलती, अल्लाह की बातें निकलती, अल्लाह का कलाम तुम्हारा निकलता। आज अगर हमारे घरों में कुरान है तो सबसे ऊंची जगह पर है। हमने इतनी इज्जत दी कुरान को, हमने इतनी इज्जत दी ताकि उसके कपड़े में लपेट कर एक कैद खाने में हमने सबसे ऊंचे में कैद करके रख दिया। तो बताओ वो कुरान, जहां कुरान को कैद किया जाता है, उस घर में खैर और बरकत कहां से आएगी? उस घर में अल्लाह की रहमत कैसे नाजिल होगी? जब घर में कुरान हो तो रहमत नाजिल नहीं होती, घर में कुरान हो तो खैर और बरकत नाजिल नहीं होती, घर में कुरान हो तो तुम्हें शिफा नहीं मिलेगी, तुम्हें मुसीबतों से टकराना होगा। अगर घर में कुरान हो, अगर तुम कुरान पढ़ते हो तो रहमत तुम्हारे घर पे नाजिल होगी, अगर तुम कुरान पढ़ोगे तो तुम्हारे घर में खैर और बरकत होगी, अगर तुम कुरान पढ़ोगे तो तुम्हारे घर में शिफा नाजिल होगी। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे पैगंबर, मैंने कुरान को इसलिए नाजिल नहीं किया ताकि इंसान इस कुरान को पाकर वो दीन भटक जाए, वो रास्ता भटक जाए। ऐ मेरे पैगंबर, मैंने कुरान को इसलिए नाजिल किया ताकि ये अपने नसीब को चमका ले, अपने नसीब को बदलवा ले। अगर उसकी नसीब खराब है तो कुरान तिलावत करके वो हमसे मांगे, मैं उसके नसीब को चमका दूंगा, मैं उसके नसीब को बदल दूंगा।
दूंगा। अगर उसके नसीब में परेशानी है, अगर उसके नसीब में मुसीबत है, अगर उसके नसीब में गमज़दा है, तो मैं उस नसीब को चमका दूंगा, उस नसीब को परिवर्तन कर दूंगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे पैगंबर, आज कौम मुस्लिम के अंदर, कौम मुस्लिम के घर के अंदर बीमारियों से सब मुब्तला है। कोई बीमार है, कोई कितना बीमार है, कोई पलंग पर लेटा बीमार है, कोई खांसी के बीमार है, कोई पेट की बीमारी में मुब्तला है, कोई आंखी की बीमारी में मुब्तला है, कोई किस किस बलाओं में मुब्तला है। ऐ मेरे पैगंबर, ये अगर कुरान पढ़े, कुरान को हमने नाज़िल किया ये अरकों के लिए, ये कुरान को हमने नाज़िल किया सिर्फ शिफा के लिए। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। आज हम कुरान को कैद करके ऊपर रख के आज हम चाह रहे हैं कि हमारी बीमारी, हमारी मुसीबत, हमारी परेशानी दूर हो जाए। डॉक्टर की दवा एक तरफ और दुआ एक तरफ। अगर कुरान पढ़ोगे, तिलावत करोगे, सूरत पढ़ोगे, तो यकीनन तुम्हारे जिस्म से बीमारी भागती जाएगी। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज ये कौम मुस्लिम का वो तारीख देखो, जब ये कौम मुस्लिम मिस्र जब फतह कर चुके थे, जब फतह करने का वक्त आया, तो एक दफा जब वो बादशाह, काफिरों के मुशरिकों के बादशाह ने कहा अपने वजीर को बुलाकर, ऐ मेरे वजीर ये तो बता, ये कौम मुस्लिम को हराना एकदम नामुमकिन सा हो गया है। आज कितने सालों से, कितने अरसे से हमने इससे जंग किया, लेकिन इसके कोई पश्त मददगार होते हैं, इसको हराया नहीं जाता। कोई ऐसा राज बताओ, कोई ऐसी तरीका बताओ ताकि इन कौम मुस्लिम को तबाह बर्बाद कर सके। तो वजीर ने बताया, हुजूर आला, ये कल जुमे का दिन है, अगर जुमे का दिन ये मुस्लिम कौम मुस्लिम पुरखुलूस के साथ और फिहा मुनक़ता, दुनिया व माफिया से मुनक़ता होकर ये बारगाह खुदाबंदी में एक साथ सरबा सजूद होता है, आप हमें हुक्म दे ताकि मैं 40,000 लश्कर को ले जाकर ये कौम मुस्लिम को जुम्मे का दिन जब ये दुनिया व माफिया से मुनक़ता होकर सरबा सजूद हो जाए, तो हम एक तरफ से उसको काटना शुरू कर। तो उन बादशाह ने कहा कि ठीक है, जब तुम यही कह रहे हो ये तरीका सही है, तो जाओ 40,000 लश्कर लेकर जाओ, और जब ये कौम मुस्लिम दुनिया व माफिया से मुनक़ता होकर सरबा सजूद हो जाए, तो उस वक्त 40,000 जर्रारे लश्कर लेकर तुम हमलावर कर देना। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये बात तय हो गई। अब वो वज़ीर जब जाकर मुखबिरों के मुताबिक वो 40,000 जर्रारे लश्कर लेकर पहाड़ियों के घाटी में छुपा रहा। अब ये जब कौम मुस्लिम जुम्मे का दिन था, जब अजानें हो गई, दूसरी अजानें हो गई, अब जब वो सरबा सजूद हुए, दुनिया व माफिया को मुनक़ता करके जब बारगाह खुदाबंदी में जब सरबा सजूद हुए, तो उस वक्त ये 40,000 जर्रारे लश्कर पहाड़ियों के घाटी से निकलने के बाद वो कौम मुस्लिम पर हमलावर कर दिया। खुदा की कसम, वो तारीख आज भी गवाह है कि वो कौम मुस्लिम की नमाज में जर्रा बराबर खलल न पहुंची। जब वो कौम मुस्लिम जब नमाज के बाद जब सलाम फिर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, न जाने हजारों को शहीद कर चुके थे, हजारों की तादाद में वो काफिर और मुशरिक शहीद कर चुके थे। उस वक्त जब इमाम ने सलाम फिरा और जब मुंह मोड़ा, तो उस काफिर लश्कर 40,000 में से एक भी बच नहीं पाया। जाके अपने बादशाह को जंग की खबर दे दे। अब बताओ वो कौन सी मददगार थी, कौन सी ताकत थी उनमें। आज कह रहा है कि नबी पर सलाम ना पढ़ो, नबी तो मुर्दा है, नाज़बिल्लाह माज़अल्लाह, नबी पर तोहमत लगाए जा रहे हैं। ये सुन्नी उलमा जो है, ये नबी की शान और मान को ढूंढने के लिए कुरान की एक एक आयत को खंगाल रहे हैं कि कौन कौन सी आयत में नबी की शान, नबी का मर्तबा हम बढ़ा सके। और ये देवबंदी मुल्ला वहाबी लोग कुरान की आयत ढूंढ रहे हैं कि नबी को कैसे घटाया जाए, नबी की शान को कैसे गिराया जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम,
हर कोई चाहता है कि अपने अपने रहबर रास्ता दिखाने वाला ताकतवर हो। आप नहीं चाहते कि आपका नेता आपकी बात माने और अच्छा हो, ईमानदार हो, ताकतवर हो। आप चाहते नहीं चाहते, सब चाहता है कि हमारा नेता अच्छा हो, हमारा नेता ताकतवर हो, हमारा नेता सब और नेताओं से अलग हो। हर कोई चाहता है। अगर आपके नेता ऐसा नहीं है, ताकतवर नहीं है, कमजोर है, बात करने का सलीका मालूम नहीं, ढंग नहीं, तो आप उसको नेता मानेंगे? नहीं माने। जो ताकतवर है हम उसी को, जिससे हमारा फायदा होगा, जिससे हमारा काम बिगड़ा हुआ काम बनेगा, वही हमारा नेता है। माज़ा में निकला। अब मैं आपको एक जरा मिसाल दूं। पढ़िए दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला मौलाना मोहम्मद सल्लो अला मोहम्मदी सल्लो अला मोहम्मद। हर दम ज़बान से निकालो पाक नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये मिसाल जरा गौर से सुनना और दिमाग की गहराई से सोचना, पूरी रात सोचना, फिर जवाब अपने अंदर ही मिल जाएगा। बस 5 या 7 मिनट का वक्त है मेरे पास। आप इसको, क्योंकि आजकल जो मोबाइलों में है ना, लंबी दाढ़ी और कुर्ता पैजामा पहन के मोबाइलों में आ जाते हैं बड़े बड़े अल्लामा बन के, और हमसे उनको टकराव करते हैं कि तुम क्या आलिम हो, तुम क्या मौलवी हो। तुमसे बड़ा वाला मौलवी मोबाइलों में देखो तकरीर कर रहा है कि नबी को ऐसा कहना है, ये शिरक है, ये बिदात है, ये फला है, ये धमका है, ऐसा ऐसा कहता है। हमारे गौस पाक पता है, बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी हम्बली मजहब के थे, पीरों के पीर हैं वो भी रफ़ा यदन करते थे, ऐसे नमाज पढ़ते थे जो आज ये वहाबी लोग पढ़ते हैं। हमारे गौस पाक भी ऐसे ही रफ़ा यदन से नमाज पढ़ते हैं। तो लेकिन इसके तरह खबीश नहीं थी। आज क्योंकि वो हम्बल का मसले के हम्बल में चलने वाले थे, आज मसले के हम्बल में रफ़ा यदन गाई। अब मैं तुम्हें एक उदाहरण, एक मिसाल दे रहा हूँ, इसको जरा गौर से समझने की कोशिश करो। 5 आदमी खड़े हैं यहाँ पे, 5 आदमी। एक आदमी यहूदी है, एक आदमी ईसाई है, एक आदमी हिंदू है और एक आदमी मुसलमान है। यहूदी, ईसाई, मुसलमान और हिंदू, 4 ही समझ रहे। अब ये 4 शख्स खड़े हैं। अब वो हिंदू कह रहा है कि हमारा जो रहबर है, हमारा जो नेता है, वो इतनी ताकतवर थी कि एक काम धनु को उठाने के बाद, जिस धनु को पूरी दुनिया में इतनी ताकत नहीं थी कि वो धनुष को उठा सके, हमारे राम ने उस धनुष को तोड़ दिया था उठा के, खिलौना के तरह। जैसे खिलौना उठाते हैं वैसे तोड़ देते हैं ऐसे। लेकिन किसी की मजाल नहीं थी कि वो धनुष को हिला सके। चलो मान लो। अब ये यहूदी कहता है कि हमारा मूसा पैगंबर पत्थर पे आशा मारते थे, यानी डंडे से मारते थे, तो उस पत्थर से 12 चश्मे पानी के निकल आते थे। वो बोला चलो तुम्हारा भी पैगंबर बहुत सही है। अब जो वो मुसलमान, ये ईसाई है, वो कहता है कि हमारा पैगंबर ऐसा है कि मुर्दों को जिंदा कर दिया। बोले तुम्हारा भी पैगंबर बहुत बड़ा ताकतवर है। अब जो मुसलमान है वो अगर कहेगा कि हमारा पैगंबर तो कुछ भी नहीं जानता, माज़अल्लाह, पढ़ा लिखा भी नहीं है और पीठ के पीछे का भी इल्म नहीं है और वो मुर्दा है, ये है, फला है, यानी नबी की जो खूबी है, अगर वो लामज़हबी हो, वहाबी हो, तो वो यही कहेगा। कहेगा नहीं कहेगा? अब वहां पर उन चारों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सा रहबर है, आप ये बताओ। यहूदी भी, ईसाई भी, वो हिंदू भी,
उन तीनों का रहबर ताकतवर है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे रहबर को कुछ आता जाता नहीं है। अगर वहां हम जैसे अहले सुन्नत वल जमात में कोई एक आलिम होता, अगर आशिक रसूल कोई होता तो वो कह देता, ऐ मूसा पैगंबर के मानने वाले सुन ले, ये क्या बात है, तेरे नबी ने तो पत्थर से पानी निकाला है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी मैं दिखा दूं कितने पहाड़ों के पत्थरों से पानी निकल रहे हैं, वहां पर तेरे पैगंबर ने तो पासा नहीं मारा लेकिन पानी निकल रहा है। ऐ ईसाई, तेरे ईसा पैगंबर ने मुर्दा से जिंदा किया है। जो मुर्दा जहां पर जिस्म जान रूह जिस जगह होती थी उस रूह को निकल जाती थी, उस रूह को लाकर फिर उसी में डाल देते थे। ऐ धनुष तोड़ने वाले, तेरे नाम ने तो इस जमीन पर रखने वाली चीज को तोड़ा है। लेकिन सुन ले ऐ यहूदी, सुन ले, तेरे पैगंबर ने पत्थर से पानी निकाला है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पत्थरों से अक्सर पानी निकला ही करता है। लेकिन मेरे पैगंबर ने अपने उंगलियों से चश्मे जारी कर दिए। ऐ ईसा पैगंबर सुन ले, आज अगर तेरे नबी ने किसी मुर्दे को जिंदा किया, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी हॉस्पिटलों में कोई मर जाता है लेकिन दोबारा घंटों बाद फिर जिंदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ये जेब है, ये पैसा है, देखिए ये जेब है, अगर हम इसमें डाले, सही है, आप निकाल ली, अब इसमें फिर डाल सकते नहीं सकते, क्योंकि जेब है। लेकिन अगर यहाँ डाले ये गिर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, फिर लाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तो गिर गया, कहीं गुम गया। लेकिन ये जिस्म है जहां पर रूह पहले से होती थी, ईसा पैगंबर के मानने वाले वहां से रूह निकल कर चली जाती थी। तेरे नबी ने तो उस रूह को लाकर उस जिस्म में फिर रख दिया करते थे। लेकिन मेरे पैगंबर बेजान चीज जिसमें कभी रूह नहीं डाली जाती, रूह रखने की जगह नहीं है, वो कंकर पत्थरों से भी कलमा पढ़वा लिए है। तू कहता है कि धनुष तोड़ा इस जमीन की रखने वाली चीज को, लेकिन मेरे पैगंबर ने इस सरजमीनी रूए जमीन से अपनी शहादत उंगलियों के जरिए से इस चांद को 2 टुकड़े कर चुके हैं। अब बताओ किसका पैगंबर ज्यादा ताकतवर है? अगर वो अहले खबीश होगा तो वो कभी मानेगा नहीं, वो आयत पे आयत ढूंढता रहेगा, पूरी रात खत्म कर देगा, खाली वही आयत ढूंढने में लगा हुआ है कि किस आयत में नबी की मानहानि हो, किस आयत में नबी का मर्तबा नीचा किया जाए, यही वो ढूंढता रहता है। आप उन स्कॉलर के यानी इतने बड़े बड़े आलिमों को देख के मत जाइएगा, क्योंकि आप भी भटक सकते हो। ये तो हम पर एहसान है, आज हम पर ये एहसान है। आज अगर खुदा ना खास्ता कलीमी सरकार की कदम आयत के सरजमीन पे अगर ना होती तो आज ये आयत वाले सबके सब वहाबी बन जाते, सबके सब वहाबी बन जाते। लेकिन आज ये सरकार की देन है, जो सरकार हमारी ईमान आबरू की हिफाजत करने के लिए मीरानपुर से देख रहे हैं। तो हजरात, इसीलिए तो मैं कहता हूँ, क्योंकि आलिम के दरबार में जाओ तो जुबान, कौल है कि आलिम के दरबार में जाओ तो जुबान संभाल के जाओ, और किसी वली की दरबार में जाओ तो अपने दिल संभाल के जाओ, क्योंकि वो दिल का हाल उनको मालूम है। आलिम जुबान से तुम्हारी गलती पकड़ सकते हैं, लेकिन वली तुम्हारी दिल की गलती को भी पकड़ सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ बड़े बड़े स्कॉलर के पास ना जाओ, क्योंकि आज तुम देखोगे कि मोबाइल में इतने बड़े स्कॉलर ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, और उनके सुनने के बाद हम जैसे आलिमों की बात तुम्हें फीकी लगने लगेगी। यानी बिना चीनी के चाय, उनकी बातें आपको चीनी वाली चाय, शक्कर वाली चाय लगेगी, और हमारी बातें फीकी लगने लगेगी आपको उनकी बातें सुनने के बाद। तो उनके चेहरे पर, उनके पढ़ाई लिखाई पर मत जाओ,
क्योंकि उससे बड़ा वाला आलिम और कोई नहीं था, वो शैतान इब्लिस मलऊन था। उससे बड़ा कोई आलिम नहीं था, उससे बड़ा मास्टर कोई नहीं था। वो फरिश्तों का मास्टर था, वो फरिश्तों का अध्यापक था, वो फरिश्तों का सरदार था। उससे बड़ा आलिम कोई नहीं था। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, बाबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। लेकिन फिर उसके गले में लानत का ताव डाल दिया गया। उसने इनकार किया, उसने इनकार किया। क्या इनकार किया? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति